नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी दोस्त शिल्पा शेट्टी। आज हम साथ मिलकर इंग्लिश सीखेंगे। बहुत मजा आएगा। क्या आप तैयार हैं? इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। इससे हम पूरी दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं और तो और अपनी फेवरेट कार्टून फिल्म्स भी इंग्लिश में देख सकते हैं। Imagine a world where you can communicate with anyone, no matter where they are from. English is a global language that opens up endless possibilities. When you learn English, you are not just learning a language. You are opening doors to new cultures, ideas, and opportunities. In today's interconnected world, knowing English is more important than ever. It is the language of the internet, science, aviation, computers, diplomacy, and tourism. Whether you are traveling to a new country, studying abroad, or working in an international company, English will help you connect with people and understand different perspectives. Learning English can be a fun and exciting journey. Think about all the new friends you can make from different parts of the world. You can share your stories, learn about their cultures, and even teach them about your own. English is a bridge that brings people together. Moreover, English is the language of some of the best literature, movies, and music in the world. Imagine being able to read your favorite books in their original language, or watching movies without subtitles. You can enjoy the beauty of the language and understand the nuances that are often lost in translation. In the classroom, learning English can be an interactive and engaging experience. Teachers use a variety of methods to make learning fun. You might play games, sing songs, or even act out scenes from your favorite stories. These activities not only make learning enjoyable, but also help you remember new words and phrases. Outside the classroom, there are many ways to practice English. You can watch English TV shows and movies, listen to English songs, or read English books and magazines. The more you immerse yourself in the language, the more comfortable you will become with it. One of the best ways to learn English is to practice speaking it as much as possible. Don't be afraid to make mistakes. Everyone makes mistakes when they are learning something new. The important thing is to keep trying and to learn from your mistakes. The more you practice, the more confident you will become. English is not just a subject you learn in school. It is a skill that you will use throughout your life. It will help you in your studies, your career, and your personal life. It will give you the confidence to pursue your dreams and achieve your goals. So start your English learning journey today. Have fun with it and remember that every word you learn is a step towards a brighter future. अंग्रेजी सीखें, मजे करें। सबसे पहले A for apple। सेब रसीले होते हैं, लाल होते हैं और खाने में बहुत यम्मी। आपको सेब पसंद है ना? अब आता है B for banana। केला पीला होता है और हमें ताकत देता है। रोज एक केला खाओ और हो जाओ स्ट्रॉन्ग। केला, जिसे हम अंग्रेजी में बनाना कहते हैं, एक ऐसा फल है जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। केले में विटामिन और मिनरल्स की भरमार होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। केले में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा केले में विटामिन B6 भी पाया जाता है जो हमारे मस्तिष्क के विकास और कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। केला खाने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, इसलिए यह एथलीट्स और बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्नैक है। सुबह के नाश्ते में एक केला खाने से दिन भर की ऊर्जा मिलती है और हम ताजगी महसूस करते हैं। केले का उपयोग केवल खाने में ही नहीं बल्कि कई प्रकार के व्यंजनों में भी किया जाता है। आप केले का शेक बना सकते हैं, इसे सलाद में डाल सकते हैं या फिर इसे केक और मफिन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले का स्वाद हर रूप में लाजवाब होता है। केले के पेड़ भी बहुत खास होते हैं। ये पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इनकी पत्तियां भी बहुत बड़ी होती हैं। केले के पेड़ की पत्तियों का उपयोग भी कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि भोजन परोसने के लिए या फिर पारंपरिक समारोहों में। तो दोस्तों, अब जब भी आप बी के बारे में सोचें तो बनाना को याद करें। ये छोटा सा फल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। रोज एक केला खाएं और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। बी फॉर बनाना, खाओ और हो जाओ तंदुरुस्त। अब बारी सी की। सी फॉर कैट। बिल्ली बहुत प्यारी होती है लेकिन थोड़ी नॉटी भी। क्या आपको बिल्लियां पसंद है? अगला अक्षर है डी फॉर डॉग। कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। वो बहुत फेथफुल और प्यारा होता है। अब आता है ई फॉर एलिफेंट।
हाथी बहुत बड़ा और स्ट्रांग होता है। उसके बड़े बड़े कान और लंबी सूंड होती है। अब बारी एफ की। एफ फॉर फिश। मछली पानी में स्विम करती है। कुछ मछलियां रंग बिरंगी होती हैं तो कुछ बहुत बड़ी। अगला अक्षर है जी। जी फॉर ग्रेप्स। अंगूर गुच्छों में उगते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। क्या आपको अंगूर पसंद है? अब आता है एच। एच फॉर हॉर्स। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। पुराने जमाने में लोग घोड़ों की सवारी करते थे। तो बच्चों, ये थे कुछ इंग्लिश अक्षर और उनके एग्जाम्पल्स। आगे भी ऐसे ही सीखते रहें और एंजॉय करते रहें। अच्छे से पढ़ाई करना और हमेशा खुश रहना। आज हमने बहुत कुछ नया सीखा है ना? हमने इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण अक्षर और उनके एग्जाम्पल्स देखे। ये अक्षर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारी भाषा की नींव है। जब हम इन अक्षरों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम आसानी से शब्द बना सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। इससे हमारी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में सुधार होता है। अब जब भी आप कोई नया शब्द देखें तो उसे ध्यान से पढ़ें और समझें कि उसमें कौन कौन से अक्षर हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और आप नए नए शब्द सीखेंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। खेल खेल में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल गेम्स और फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करके हम अपने अक्षरों और शब्दों को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा ड्राइंग और कलरिंग भी बहुत मजेदार होते हैं। आप अपने पसंदीदा अक्षरों और शब्दों को रंग सकते हैं और उन्हें और भी आकर्षक बना सकते हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। जब आप अपनी ड्राइंग्स और आर्ट प्रोजेक्ट्स को अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ शेयर करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप अपने आइडियाज को और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज में भाग लेना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे टीम वर्क और कोलैबोरेशन की भावना बढ़ती है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया और एक्साइटिंग बना सकते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं और उसमें सफल होते हैं तो उसे सेलिब्रेट करना भी बहुत जरूरी है। इससे आपको और भी मोटिवेशन मिलती है और आप और भी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। हमेशा याद रखें कि पढ़ाई के साथ साथ खुश रहना भी बहुत जरूरी है। जब आप खुश रहते हैं तो आप और भी अच्छे से सीख पाते हैं। तो बच्चों, आगे भी ऐसे ही सीखते रहें और एंजॉय करते रहें। अच्छे से पढ़ाई करना और हमेशा खुश रहना। फिर मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए अलविदा।